پاکستان کے قیمتی پتھر، پھل، میوہ جات اور چلگوزے بڑے اور درمیانے درجے کے شہروں میں رہنے والے نوجوان چینی صارفین کو بہت پسند ہیں۔ پاکستانی صوتی دھاگا اور چمڑا چین کے متعلقہ صنعتوں کے لیے اہم خام مال ہے۔ پاکستان کے شاندار برف پوش پہاڑ، گہری وادیاں، شاندار تاریخی مقامات اور دلکش لوک رسم و رواج چینی سیاحوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کا مقصد عالمی خریداروں کی توجہ حاصل کرنا ہے تاکہ زر مبادلہ کمایا جا سکے، اور اس سال کی ایکسپو میں پاکستان کی کس معیار کی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی؟ براہ کرم ہمارے ساتھ آئیے۔ Hello. Find Pakistan. Okay, here we go. See, we can see here Pak Persian is Pakistan's products. Hello, sir. ہیلو سر، برائے مہربانی کیا آپ اپنی پروڈکٹ کا تعارف کرا سکتے ہیں؟ اس مرتبہ CIIE میں ہم لوگ پاکستان سے ان خاص چیزوں میں سے ایک لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمالیہ نمک کا لیمپ ہے۔ یہ کمرے میں ہوا صاف رکھنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان گلابی نمک کی وجہ سے مشہور ہے اور اس کا مشہور مقصد ہوا صاف کرنا ہے۔ میں نے اس بارے میں کبھی سنا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں سال تک ہمارے ہاں رواج رہا ہے کہ اس نمک والی دوائی کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ روایتی طب میں کیونکہ جو لوگ ٹھیک طرح سے سانس نہیں لے سکتے، جیسا کہ بوڑھے اور بچے، ہم یہ لیمپ جلاتے ہیں اور اسے گرم کرتے ہیں، چنانچہ یہ ہوا صاف کرتا ہے اور پھیپھڑوں میں صاف ہوا جانے لگتی ہے۔ پاکستان میں یہ اس چٹانی نمک کا قدیم ترین استعمال ہے۔ اگر آپ کسی چینی شخص سے پوچھیں کہ کیا اس نے کبھی نمک کا لیمپ دیکھا ہے جسے کھایا جا سکتا ہے، تو جواب شاید نہیں ہے۔ ہمالیائی سالٹ لیمپ پاکستان میں ایک گھریلو نام ہے، لیکن یہ اب بھی چین میں ایک نیا پن ہے۔ جب یہ CIIE میں پہلی بار شامل ہوا تو اس نے کافی توجہ حاصل کی۔ Salt lamps have never been introduced before in China. اس سال نئی مصنوعات میں ہم نمک کے بنے ہوئے لیمپ لائے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہم چینی مارکیٹ میں نمک کے لیمپ متعارف کروا رہے ہیں۔ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں ہم پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے چین میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پر سالٹ لیمپ کبھی متعارف نہیں کروائے گئے، تو گویا ہم سب سے پہلے یہ لیمپ یہاں لائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ نمک کے لیمپ ہی کیوں متعارف کروا رہے ہیں؟ دراصل یہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی چیز ہے۔ یہ آج کل یورپ اور آسٹریلیا میں بہت مشہور ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت مفید ہے۔ آپ یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک پتھر نہیں ہے، یہ نمک سے بنا ہوا ہے۔ یہ وہی نمک ہے جو آج کل انٹرنیٹ پر گلابی نمک کے نام سے مشہور ہے۔ ہمالیائی نمک کا لیمپ جسمانی آئنائزیشن کے ذریعے خشک نمک کے ایروسول کے ذرات کو اتار چڑھاؤ دیتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بے چینی کو کم کرتا ہے اور نیند کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ کی نیند کا معیار اچھا نہیں ہے تو سالٹ لیمپ کا انتخاب کریں اور اسے گھر میں رکھیں تاکہ نیند بہتر ہو اور اس سے گھر کا ماحول بھی سجے گا۔ Number 1, it's an air purifier. نمبر 1، یہ ہوا صاف کرنے والا آلہ ہے۔ آپ کو بہت زیادہ رقم خرچ کر کے ہوا کو صاف کرنے والے آلات خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف نمک کا لیمپ خریدیں، اسے اپنے بستر کے پاس رکھیں، یہ گرم ہو جائے گا، یہ آپ کے آس پاس کی تمام نمی کو چوس لے گا اور اس عمل کے دوران یہ تمام منفی برق پاروں کو چوس لے گا۔ پھر نمک کی جلد پگھل جائے گی اور تازہ جلد نکل آئے گی۔ یہ ہوا صاف کرنے والا آلہ ہے۔ جب آپ اسے 3 سے 4 ماہ کے بعد اپنے بستر کے ساتھ لگائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی نیند دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ نمبر 2، اچھی صحت سے متعلق چیزیں یہ ہیں کہ یہ آپ کی نیند کو بہتر بناتا ہے۔ یہ جلد کی حفاظت کی مصنوعات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر روز اس کے قریب سوتے ہیں اور آپ 20 سے 30 منٹ تک اس کی قربت میں سانس لیتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ نہ صرف آپ کا نظام تنفس بہتر ہو رہا ہے بلکہ آپ کی جلد بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے اثرات پر تحقیق کی گئی ہے اور یہ باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ It's a salt rock
ये चट्टानी नमक क्रिस्टल की मानिंद दिखता है। हम इसे नमक का क्रिस्टल कहते हैं और वो इसके अंदर एक छोटा सा लैंप लगा देते हैं। मगर जान लीजिए कि ये LED नहीं है, क्योंकि LED गर्म नहीं होती है। ये एक आम लैंप है, बहुत छोटा सा, जिसमें सिर्फ 10 या 15 वाट का बल्ब लगा है, जो आप इस पत्थर में लगाते हैं और आप देखते हैं कि ये किस तरह रंग तब्दील करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है और रंग बदलना शुरू हो जाता है। आप देखिए, आप इसे छू सकते हैं, ये बहुत सख्त है। आप इसे देख सकते हैं। जब ये गर्म होता है तो बहुत मुफीद होता है। अगर ये गर्म नहीं है तो ये एक आम चट्टान की मानिंद है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ उसी सूरत में फ़ायदेमंद है जब ये गर्म होता है, लिहाजा इसे गर्म रखना चाहिए। different design, different layers. हिमालयाई पिंक नमक दुनिया में खालिस तरीन मादनी नमक के तौर पर जाना जाता है। ये इंसानी सेहत के लिए मुफीद 15 मादनियात से मालामाल है और ये एकदम जिंदगी की अहम ज़रूरत बन गई है, जिसकी यूरोप में आला तबके ने तलाश की थी। फिर चीनी मार्केट में इन पिंक साल्ट लैंप्स की कीमतें क्या हैं? Like this, for example. मिसाल के तौर पर ये छोटा, ये 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक का है, तो इस किस्म का लैंप तकरीबन 200 युआन का है। फिर आप मज़ीद वज़नी देखेंगे, जैसे 3 से 5 किलोग्राम तक के लैंप जिनकी कीमत 400 से 450 युआन है। फिर इससे भी बड़े लैंप जिनका वज़न 5 से 7 किलोग्राम तक है और कीमत 600 युआन तक बढ़ सकती है। और फिर हमारे पास 50 किलोग्राम का लैंप है जो बहुत बड़ा है। फिर इससे भी बड़े हैं, तो ये साइज़ पर मुनहसिर है। जैसे ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो आप देख रहे हैं, ये 3800 युआन का है। तो क्या ये पाकिस्तान में आम है? चीनी घरों में ये बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इस किस्म की चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में है, लिहाजा हम अब चीन में इसकी मार्केट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चीनियों को ये पसंद आएगा? क्योंकि हमारे चीनी सार्फिन को पहली बार देखने से पता नहीं चलता कि ये क्या है, इसलिए वो पहले ही इसे ख़रीदने के लिए बेचैन हो जाते हैं जब वो इसे एक हफ़्ते तक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये वाकई अच्छा है, क्योंकि हवा की इस पाकीज़गी का असर इतना अच्छा है कि वो आते हैं और बार बार ख़रीदते हैं और अपने दोस्तों को मुतारिफ़ कराते हैं, और फिर दोस्तों के दोस्तों तक इसका तारुफ पहुंचता है, तो उनका फ़ीडबैक बहुत अच्छा है। मैंने इसे टीवी पर देखा और मेरे घर वालों ने इसे पसंद किया, लिहाजा हमने सोचा कि हम इसे आजमाएंगे। ये एक नई बात है, ये माहौल दोस्त है और तनाव को दूर कर सकता है। मैंने असल में इसे अपने वालिद के लिए ख़रीदा था। बेचने वाले ने ये भी बताया कि ये सर दर्द को दूर कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बहुत पुरकशिश है। We have over 5 stores in Shanghai. शंघाई में हमारे 5 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और हमारे पास ऑनलाइन स्टोर भी है। हम वहाँ भी फ़रोख्त करते हैं। हमारे पास WeChat स्टोर है जो मेरे सार्फिन के लिए आसान है। इस साल के आखिर में हमारा ताओबाओ पर भी स्टोर खोलने का मंसूबा है, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों से हम इसे कस्टमर के फ़ीडबैक के लिहाज से जांच रहे हैं। तो ये बहुत मुस्बत है, ये बहुत अच्छा है, तो यकीनी तौर पर हम अगले मरहले में ताओबाओ पर बेचेंगे। अगरचे CIIE में पहली बार पिंक साल्ट लैंप मंजर आम पर आए हैं, मगर पाकिस्तानी पिंक नमक पहली नुमाइश के आगाज से ही एक मकबूल प्रोडक्ट थी, लिहाजा चीनी सार्फिन इससे वाकिफ हैं। हालिया बरसों में चीनी दरामद कुनिंदगान ने पाकिस्तान से बराह रास्त पिंक साल्ट दरामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 稀有的，然后我们的那个就是粉盐。 ये सब दरामदशुदा हैं। तमाम दरामदशुदा मसनूआत असल पैकेजिंग में हैं, जो CIIE की खुसूसियात की अक्कासी करती हैं। ज़ाहरी तौर पर गुलाबी नमक की सतह संगे मरमर जैसी है और इसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी बहुत ख़ास है। CIIE में हम यकीनी तौर पर तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाहक इसे देखने आएंगे। इसके अलावा इसका जायका बहुत अच्छा है, लिहाजा हम इसे एक फ़ीचर प्रोडक्ट के तौर पर दिखाना चाहते हैं और इसे अपने तमाम सार्फिन से मुतारिफ़ कराना चाहते हैं। 16年去加拿大旅游，1000 जब मैंने 2016 में कनाडा का सफ़र किया और वहाँ अपने बच्चों को स्कूल भेजा, तो उन्होंने जो कुछ सुपरमार्केट में फ़रोख्त किया वो गुलाबी नमक था। तब मुझे इस नमक के बारे में मालूम हुआ। ये हिमालय से हासिल होने वाला मादनी नमक है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। उस वक्त हमने ये नमक खाना शुरू कर दिया और हमने इसे कनाडा से दरामद करके बेचना भी शुरू कर दिया।
Pakistani textile products and Pakistani scarf we can see here. पिंक नमक के अलावा पाकिस्तानी टेक्सटाइल बैनुल-अक़वामी मार्केट में सबसे ज्यादा मुसाबकती अशिया में से एक हैं। जहां तक कालीनों का ताल्लुक है, मशीनें सिर्फ 1 दर्जन से ज्यादा रंग पैदा कर सकती हैं, जबकि पाकिस्तान रवायती दस्ती बुनाई और रंगने की तकनीक इस्तेमाल करके दर्जनों रंगों को रंग सकता है। It's all done by hand, as you can see. स्कार्फ सारे के सारे हाथ से बनाए जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे स्कार्फ हैं। हमारे पास कश्मीरी है और ये तमाम हाथ से तैयार करदा है। इस तरह का एक कालीन बनाने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। हम अपने पुराने और नए गाहकों से मिलने के मुंतज़िर हैं, क्योंकि CIIE कारोबार के लिए बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है जहां हमें बहुत से गाहक मिल सकते हैं। इस साल की एक्सपो के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेहतरीन रहेगी जैसा कि ये माजी में होती थी, लेकिन वायरस की वजह से ये कदरे मुतासिर हो सकती है। मगर जहां तक बात है चीन की, तो ये वायरस की सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह निमट रहा है। उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा काबू पा लिया है। मैं मुस्बत सोच रखने वाला बंदा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर चीज़ मामूल पर आ जाएगी। पाकिस्तान में हाथ से बना हुआ कालीन बनाने में औसतन 1 या 2 मजदूरों को 3 से 4 महीने लगते हैं। अगरचे कुछ मैन्युफैक्चरर्स कालीन बुनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वक्त और लागत की बचत होती है, लेकिन मशीन से बुने हुए कालीन रंगने और पैटर्न की टेक्नोलॉजी में हाथ से बुने हुए कालीन का मुकाबला नहीं कर सकते। कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप कम मयारी मसनूआत की तलाश में हैं तो वो 1000 RMB से शुरू हो सकती हैं, और अगर आप अच्छा कालीन देख रहे हैं तो वो 1 लाख RMB तक जा सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा के भी हो सकते हैं। ये जो है ये 2.5 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा है, और ये हम 4000 RMB का बेच रहे हैं। हमारे पास बड़ी मार्केट है। चीनी गाहक ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में आ रहे हैं। उनकी ज़्यादा दिलचस्पी कालीनों में है, क्योंकि अब चीनी लोगों ने अपने नए घर बनाना शुरू कर दिए हैं। हर चीनी का ये ख्वाब है कि उनका अपना घर हो। चुनांचे जब उनका अपना घर होता है तो उनका अगला काम ये होता है कि अपने घर को सजाएं, इसलिए कालीन उनकी पहली चॉइस होता है। मगरबी लोग अक्सर मशरकी ममालिक के हाथ से बुने हुए तमाम कालीनों को मशरकी कालीन कहते हैं, लेकिन दर हकीकत हर मुल्क और खित्ते के हाथ से बुने हुए कालीन रंगों के मलाप और पैटर्न के लिहाज से अपनी मुनफरिद खुसूसियात रखते हैं। तेज रंगों और घने नमूनों के साथ साथ ये हाथ से बुने हुए कालीन अफगानिस्तान से आते हैं। मेरा नाम अली फैज़ है और मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। मैं CIIE में दूसरी बार आया हूँ। मैं अफ़गानिस्तान के हाथ से बने हुए कालीन लाया हूँ, जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से और मुख्तलिफ़ रंगों के बहुत मुनफरिद डिज़ाइन वाले हैं, और हम कस्टमर की डिमांड के मुताबिक भी डिज़ाइन बनाते हैं। हम गाहकों की ज़रूरियात के मुताबिक कालीन बनाते हैं। अली फैज़ ने गुज़श्ता साल पहली बार CIIE में शिरकत की और चीन में अपने पहले गाहक बनाए। अफ़गान कालीन के रवायती फ़वाइद जैसे कुदरती रंग को चीनी सार्फिन की तरजीहात के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए उसने इस साल की CIIE में एक हस्बे ज़रूरत मंसूबा शुरू किया। वो उम्मीद करता है कि चीन के साथ अफ़गानिस्तान की तजारत पटड़ी पर है। अफ़गान कालीन और दीगर ख़ास सामान लॉजिस्टिक अखराजात में मज़ीद कमी के तीसरे नंबर से गुजरे बगैर बराह रास्त चीन को बरामद किया जा सकता है। अफ़गान कालीन की खुसूसियात के बारे में इसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही मुनफरिद है। मिसाल के तौर पर अगर आप हमारे कालीनों में से कोई इस्तेमाल करें तो आप इसे कम अज़ कम 50 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें कि इसका रंग ख़राब नहीं होगा, और अगर आप इसे रखें तो आप ज़्यादा अरसे तक इसे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कल्चर भी अपने साथ लाता है। हम कालीन में अपना इत्तेहाद, कल्चर और दीगर समाजी कदरें भी बुनते हैं, ताकि हम दुनिया को सिर्फ ये कालीन की सनत ही मुतारिफ ना करवाएं। सबसे खास बात यह कि अली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम की 100वीं सालगिरह मनाने के लिए अपने डिज़ाइन करदा टिपेस्ट्री और बहुत से अफ़गान देहातियों के हाथ से बुने हुए टिपेस्ट्री लाए थे। ये टिपेस्ट्री बहुत सी मुश्किलात के बाद अफ़गानिस्तान से शंघाई भेजी गई। हाँ, ये एक ख़ास तोहफ़ा है जो हमने इस बरस चीन के लिए बनाया है। दरअसल हम सिर्फ एक ही कंपनी हैं, वाहिद गैर मुल्की कंपनी, जिसने ये कालीन बनाया है। मैंने 4 पीस बनाए और अब इस वक्त यहाँ पर CIIE में हमारे पास 2 पीस हैं। मैंने इसे बनाने के लिए इस पर बहुत सख्त मेहनत की और हमने इसे अफ़गानिस्तान से चीन भेजा। ये बहुत पेचीदा था, लेकिन फिर भी हमने इसे बना लिया। अब यहाँ ये हमारे पास है और मुझे उम्मीद है कि चीनी दोस्त इसे पसंद करेंगे।
you